ओके, मीनवाइल जस्ट आप अपने हैंड जो है वो डाउन कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये है कि आप सब जो है अभी माइक्स आपके म्यूटेड है, लेकिन आपको कोई क्वेश्चन हो, आपने जो है ये हैंड रेस की ऑप्शन यूज़ करनी है। ठीक है, और अरसलान जो है आज के मॉडरेटर होंगे सेशन के, तो आपको जो है वो माइक आपको अलाउ कर देंगे। तो हैंड रेस की आपने ऑप्शन यूज़ करनी है इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन थ्रू आउट द सेशन। ये जस्ट मेक श्योर करने के लिए कि कोई डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो, तो इस वजह से हमने ये एक सेटिंग्स अलाउ की है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो आज का जो सेशन है, सेकंड सेशन ऑफ आवर क्लाउड बूट कैम्प, इट्स अबाउट कोर एजर सर्विसेज। और जैसे कि इंट्रोडक्शन भी आपको उस्मान भाई का करवाता चलो, तो ही इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेडर, सी शार्प कॉर्नर एमवीपी एंड प्रैक्टिस लीड एट वेपर वीएम। तो इस सेशन के अंदर, इस क्लाउड बूट कैम्प के अंदर काफ़ी सोसाइटीज़ ने भी हमारे साथ लाइक इसके अंदर कोलैबोरेट किया है। ठीक है, आई ट्रिपल ई एम बी सी यू आई सोसाइटी, वुमेन इन टेक लाहौर एंड वुमेन इन इंजीनियरिंग लाहौर एंड यू ई आई टी सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटीज़ हैं हमारे साथ इस क्लाउड बूट कैम्प के लिए उन्होंने कोलैबोरेशन की है। तो रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी, रिकॉर्डिंग आपको सेशन के बाद मिल जाएगी। एंड इट्स नाउ ओवर टू यू उस्मान भाई। Thank you. So I saw a hand raise. If you guys want to address that first, otherwise I can start. यस उस्मान भाई, यू कैन स्टार्ट। Okay, Zabardast. So, जैसे साद ने आपको बताया, first of all, Assalamu alaikum and hope everyone is fine, safe and healthy. So, today's session is about core Azure services. Previously, हमने जो last session था हमारा, hope you had a chance to look at the video if you haven't attended the session. Otherwise, जिन्होंने session attend किया था, it was very simple and very basic. We talked about cloud concepts in general. And now we will be focusing more towards Microsoft Azure, our agenda. Let me remind you first that this session or the purpose of this cloud development bootcamp is to create or enable you to become a cloud developer, particularly on Microsoft Azure. Uh, During the sessions, I will try to relate few of the services with GCP and AWS, but the focus area would be Microsoft Azure because we want to prepare you on cloud certifications. Mainly, there is the first certification currently we are talking about is AZ900, which is cloud or you can say Azure fundamentals. The second one is I believe it was developing solutions on Microsoft Azure. So the second one is more towards the development side, but the first one is very general. So anyone who want to start with Microsoft Azure must have the knowledge, irrespective of he's the infra guy, DevOps guy, कुछ भी type का है, he can start with this particular curriculum जो हम अभी बात कर रहे हैं. So first 5 to 6 sessions are very basic. So the idea is to build the good concepts and build the grounds, and later on after 6 sessions it would be purely on development side. So I would suggest right along आप लोगों को कुछ चीजें भी share कर रहा हूँगा. We have created a group and probably after the session start would be sending out the links. So उसके अंदर ये है कि मैं आपको helpful links और जो other material है like the slides, what I'm talking about would be shared over there. So the introduction is already done. So I would move towards the outline of today's session. As you can see, these are if you see the watermark in the below, these are basically the curriculum we are talking about is Microsoft official content. So this is designed to train you on the certification side. Okay, so our agenda for today's module is we will be talking about Azure architectural components. जिसमें we would be talking about the zones, how the structure or the geographies are, subscription क्या होती है, resource group क्या होते हैं. We will be exploring the portal as well, Azure portal. I'll give 2 options जहाँ से आप sign up होके मेरे साथ follow कर सकते हैं इन sessions को. Apart from that, we will be covering core Azure resources.
जिसके अंदर व्हाट इज कंप्यूट, नेटवर्किंग क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है, डेटाबेसेस क्या है। तो इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम आज कवर कर रहे होंगे। I would suggest that after every sort of main module or the title is covered, तो मैं आपको Q&A का option दूंगा. So during this session, अगर आपके कोई भी question है, note them down. So let's say once I cover the Azure architectural components, so I'll open up mics for 5 minutes, जहाँ के अंदर हम Q&A करेंगे. Same goes for core Azure services, so that we have 1 hour and we utilize this very properly. So starting with कोर एजर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स, जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कोर एजर कंपोनेंट्स की, तो हमारे पास रीजन्स की बात करते हैं, रीजन पेयर्स की बात करते हैं, व्हाट आर अवेलेबिलिटी जोन्स, एजर रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स ग्रुप क्या होते हैं, रिसोर्स ग्रुप मैनेजर क्या है, सब्सक्रिप्शन और एजर मैनेजमेंट ग्रुप्स क्या है। तो ये ओवरऑल है हमारे पास कोर एजर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट, द जो कहते हैं ना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो वो हैं जिनके ऊपर आप अपना सोल्यूशन जो है वो स्ट्रक्चर करते हैं कि लेट्स से you have a customer in XYZ region या XYZ specific area, तो आपने उसके लिए कौन सा रीजन पिक करना है। अच्छा, फिर उसके लिए डिजास्टर रिकवरी का सोल्यूशन के लिए मुझे कौन से अवेलेबिलिटी जोन्स या क्या बनाने हैं। फिर उसके अलावा अगर मुझे कुछ ऑटोमेट करना है तो रिसोर्स ग्रुप की ऑटोमेशन कैसे होगी। तो इस किस्म की सारी चीजें इसके ऊपर बेस करती हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि रीजन्स क्या है। सो दीज आर बेसिकली द फिजिकल लोकेशंस जहाँ के ऊपर हमारे डेटा सेंटर्स हैं। लेट्स से अगर मैं रीजन की बात करूं, काफी सारे रीजन आपको इधर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी 60+ रीजन्स है एंड इट्स कीप्स ऑन ग्रोइंग। सबसे बड़ा इस टाइम जो फुटप्रिंट है एज कम्पेयर टू जीसीपी एंड एडब्ल्यूएस, जो रीजन वाइज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। दे आर ऑपरेटिंग इन 140 कंट्रीज, और एक जो रीजन होता है इट कंप्राइजेस ऑफ मोर देन वन, you can say one, or starting with one, but at least 2 to 3 data centers होते हैं नियर बाय। तो अभी वो देखते हैं कि उनकी नियर बाय की क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या फायदा क्या होता है। सो हम बात करें जी, अगर आपके पास ब्राजील साउथ आ रहा है तो उसके अंदर हमारे पास अभी इधर इस साइड के ऊपर आप देखें तो जो सॉलिड राउंड है या बुलेटेड पॉइंट है, हमारे पास अवेलेबल रीजन्स हैं, अनाउंस्ड रीजन हैं और अवेलेबिलिटी जोन्स है। इफ यू विजिट अगर या इफ यू टाइप और सर्च फॉर एजर रीजन्स, तो ये आपको बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर व्यू आ जाएगा और वहां के ऊपर आप रीजन वाइज सर्विसेज को भी देख सकते हैं। लेट्स से यूएई नॉर्थ इज लॉन्च रिसेंटली। सो उसके अंदर क्या है कि आपको सारी सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी। सो अब वो उन्होंने आपको बताया होता है कि प्लान क्या है। अभी लेट्स से उन्होंने वर्चुअल मशीन्स की ऑप्शन दी हुई है, आफ्टर दैट डेटा आ जाएंगे आपके पास, वेब एप्स आ जाएंगी, कंटेनर एंड सो ऑन। तो इस तरह की चीज़ें कि प्लान आप वो रोड मैप जो है इजीली देख सकते हैं। सो रीजन्स की बात हमने की, रीजनल पेयर्स की बात करते हैं। सो एग्जांपल वुड बी रीजन और रीजन पेयर की क्या है कि एक रीजन है हमारे पास ईस्ट यूएस, और उसका जो रीजनल पेयर है हमारे पास वो ईस्ट यूएस 2 भी हो सकता है, वेस्ट यूएस। ये रीजनल पेयर्स माइक्रोसॉफ्ट ने डिफाइन किए हैं बेस्ड ऑन दैट कि अगर आपके पास अपडेट्स आती हैं तो आपने जो अपना बैकअप रीजन बनाया हुआ है, लेट्स से मैं रीजन ए के अंदर बैठा हूँ और मेरी सर्विसेज उसमें चल रही हैं। सो इन केस ऑफ डिजास्टर मेरा रीजन 2 जो है वो प्राइमरी से जो है वो सेकेंडरी जो है मेरा प्राइमरी बन जाएगा और प्राइमरी सेकेंडरी के तौर पर होगा, एक्ट करेगा। फायदा ये है कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी अपडेट्स रोल आउट करता है और वो इस हिसाब से करता है। कुछ रीजन से इन्होंने पेयर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इफ यू विजिट द लिंक तो आपको ये इन सारों का पता लग जाएगा कि कौन से रीजन का किसके साथ पेयर्ड है, और ये बैक एंड पे वो मैनेज कर रहे होते हैं। पर्पस ये है कि लेट्स से अगर नॉर्थ सेंट्रल यूएस के अंदर अगर अपडेट्स आई हैं तो आपका जो लोड है मेजर ये प्राइमरी बन जाएगा और इट वोंट अफेक्ट योर बिजनेस। ठीक है, सो अपडेट्स प्रॉपरली वो रोल आउट हो जाएंगी, क्योंकि अपडेट्स में डाउन टाइम आता है। लेट्स से अगर विंडोज़ की अगर आपने कोई, अगर आपकी वर्चुअल मशीन चल रही है, कुछ अपडेट्स हैं तो उसमें रीस्टार्ट भी होगा, कुछ डाउन टाइम भी आ सकता है। तो उस केस के लिए ये बैकअप रीजन जो है वो आपका होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजनल पेयर्स। ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने डिफाइन किया, बट अगेन यू कैन सेट अप योर ओन बैकअप रीजन या सेकेंडरी रीजन्स। सो दोनों ऑप्शन है, इट वेरीज फ्रॉम सर्विसेज टू सर्विसेज, जहाँ के ऊपर आपको रीजनल पेयर की ऑप्शन होती है और कुछ के अंदर आपको खुद सेटअप करना पड़ता है। लेकिन द पर्पस इसके भाई, अगर एक रीजन उन्होंने बताया, अनाउंस किया है कि नॉर्थ में आ रहा है, तो आपका जो दूसरा है वो एक्टिव होगा। सो
रीजन की हम बात कर रहे थे को एक डेटा सेंटर, तो डेटा सेंटर की क्विकली इट्स द साइज ऑफ अ फुटबॉल फील्ड। सो यू कैन इमेजिन के कितने हमारे उधर कंपोनेंट्स चल रहे होंगे, कितना हार्डवेयर, कितने रिसोर्सेज उधर यूटिलाइज हो रहे होंगे। इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें रीजन्स की, तो रीजन्स आर बेसिकली डिजाइन सो बेस्ड ऑन द कंप्लाइंट। जैसे कि हम बात करते हैं अभी रीजन के बाद से हमारे पास आगे जोग्राफीज भी आ रही हैं। सो लेट मी क्विकली जंप टू जोग्राफीज एंड फिर मैं वापस रीजन पे आता हूँ, क्योंकि इन सब के ऊपर जो है आई वुड सजेस्ट, मेरे पास आई बिलीव लिंक्ड ओपन है। सो जस्ट टू क्लेरिफाई, रीजन्स और ये सब कुछ, यस। सो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के बाद आपके पास रीजनल पेयर्स हैं, फिर उसके अंदर रीजन्स हैं। सो ज्योग्राफी वुड बी लाइक एशिया पैसिफिक। अब एशिया पैसिफिक के अंदर मल्टीपल रीजन्स आ सकते हैं। अब ये ज्योग्राफी बनाने का पर्पस क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज कुछ हैं वो कॉमनली अप्लाई जहाँ के ऊपर होते हैं, वो हम उसको एक ज्योग्राफी कंसिडर करते हैं। जैसे अगर आपके जहन में आ रहा हो, हमने बचपन में पढ़ा होगा जी एशिया, अफ्रीका, अच्छा इस तरह की चीज़ें भी हैं। अगर आप इनके ज्योग्राफी के ऊपर जाएंगे, लेकिन उसके अलावा आपको कंट्रीज भी माइट भी समटाइम्स नजर आए, तो इट इज नॉट रिलेटेड टू योर ज्योग्राफी जो आप टिपिकल पढ़ते हैं। सो डू नॉट कंफ्यूज विद दैट। लेकिन इसका पर्पस यह है कि एक ज्योग्राफी डिक्लेयर करते हैं बेस्ड ऑन द compliant and based on the rules and regulation and the laws. So coming back to हम बात कर रहे थे क्विकली ज्योग्राफी की, और फिर हमने रीजन्स की बात की। अभी हम जब एक क्रिएट करेंगे ना एक सर्विस, अभी हमने आज एक दो सर्विसेज क्रिएट करनी है, तो उसके अंदर आपको एक क्लियर हो जाएगा कहाँ किस लेवल के ऊपर हम रीजन सेलेक्ट करते हैं अपना। So availability zones, and before that I would like go with this. So each region have multiple availability zones, यानी आपके रेप्लिकास होंगे। आपने एक सर्विस क्रिएट की है, लेट्स से एक वेब ऐप क्रिएट की है, तो उसकी 3 रेप्लिकास होंगे अवेलेबल, 1 2 and 3, एंड दीज आर बेसिकली सेपरेट। सेपरेट इन अ सेंस कि अलग अलग हमारे रैक्स में हैं। लेट्स से वन रैक इज आउट, या आप अगर देख रहे हैं ये ब्लू वगैरह, तो assume that your service or your component is running in this particular rack. अगर फॉर सम केस ये रैक आउट होता है, तो आपके पास जो अवेलेबिलिटी जोन 2 है आपके पास वो अवेलेबल होगा, और वो बैकअप के तौर पे यूज होगा। अब ये कैसे अवेलेबिलिटी आपने मैनेज करनी है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के केस के अंदर यू हैव टू मैनेज दिस। इन केस ऑफ प्लेटफॉर्म एज सर्विस, लकीली हम डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट के अंदर हम मोस्टली पैस सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, जो कि मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट एजूर होती हैं खुद से, तो हमें इसको मैनेज नहीं करना पड़ता। ये बैकग्राउंड के ऊपर ये स्ट्रेटजी चल रही होती है कि वन रैक इज डाउन, इन सब का अलग अलग कह लें कि इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई होती है, नेटवर्किंग। सो वन जोन इज आउट, सो द अदर कैन रन इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी कह लें डिस्ट्रप्शन। सो एजूर रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे। एजूर रिसोर्सेज हम कुछ जो आज क्रिएट करेंगे, हम देखेंगे वर्चुअल मशीन्स हैं आपके पास, स्टोरेज अकाउंट्स हैं, वर्चुअल नेटवर्क्स हैं, ऐप सर्विसेज हैं, एसक्यूएल डेटाबेस है, ये कुछ हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, 160 आई बिलीव, मोर देन दैट आपके पास। अभी हम जाके देखते हैं, मोर देन 200 सर्विसेज अवेलेबल हैं, आई बिलीव 600। सो लेट्स से जाके देखते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि इट कीप्स ऑन ग्रोइंग। whenever you check, there is a service जो कि अभी बीटा स्टेज में होगी, और विद इन फ्यू मंथ्स वो प्रॉपरली आप उसको यूज कर सकेंगे। तो द क्लाउड इज अडॉप्ट, जो क्लाउड अडॉप्शन है या जो क्लाउड एवोल्यूशन है, वो इस लिहाज से है कि बहुत सर्विसेज और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है उसके ऊपर, और चीज़ें और कंपोनेंट्स जो हैं वो बड़ी क्विकली उसमें आ रही हैं। सो हमारे पास रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिसोर्स ग्रुप। अब आपने एक रिसोर्स बनाना है, जैसे कि एक वर्चुअल मशीन, या आपने एक वेब ऐप डिप्लॉय करनी है। तो अगर हम टिपिकली देखें, हम कभी अगर आपने कभी आपको चांस मिला हो कोई वेब ऐप डिप्लॉय करने का अदर देन द क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो आप एक आपके पास होती है कंपोनेंट, और एक आपके पास उसका डेटाबेस होता है, और समटाइम्स आप कुछ स्टोरेज भी लेते हो जहाँ के ऊपर आप अपनी मीडिया वगैरह स्टोर कर रहे हो। तो एटलीस्ट चलो 2 से 3 सर्विसेज हैं, इनको अगर आपने मैनेज करना है एफिशिएंटली, उनका देखना चाह रहे हो कि बिलिंग उनकी कितने की आ रही है मेरी एक वेब ऐप की,
तो आपको कुछ उसको लॉजिकल बाउंड्री के अंदर रखना है। तो रिसोर्स ग्रुप्स आर बेसिकली लॉजिकल बाउंड्री इन विच आपको ये चीज़ों को इकट्ठा आप रख सकते हो जो रेलिवेंट होती हैं, जो रिलेटेड होती हैं। सो एक सोल्यूशन अगर आपका है जी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हो, तो उससे रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज आप एजर की यूज़ करोगे उन सबको एक जगह पे रखो, सो दैट आपके लिए भी मैनेज करना ईजी। और समटाइम्स ये होता है कि आपने टेस्ट एनवायरनमेंट बनाया तो आप लेबल कर लेते हो उसको, टैग्स अभी हम देखेंगे देखे, तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो पता लग जाता है कि क्रिटिकल है कि नहीं है। रिसोर्स ग्रुप जो है कुछ और की फीचर्स अदर देन कि उनकी मैनेजमेंट ईजी है। रिसोर्स ग्रुप, एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर अगर आपने बनाया, लेट्स से मैंने यूएई नॉर्थ के अंदर अगर वेब ऐप बनाई है, तो यूएई साउथ या ईस्ट यूएस के अंदर अगर किसी रीजन के अंदर मैं उसकी डेटाबेस बना सकता हूँ। सो डिफरेंट रीजन्स की सर्विसेज एक रिसोर्स ग्रुप में आ सकती हैं। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई उसकी, जिस तरह हम कहते हैं ना कि आपने फोल्डर बनाया तो उसमें किसी भी टाइप की फाइल्स ऐड करें, तो सिमिलरली एक रिसोर्स ग्रुप आपने लॉजिकल बाउंड्री अगर बनाई है तो उसके अंदर आपकी किसी भी तरह की सर्विसेज आ सकती हैं, किसी भी तरह के रीजन की, एंड दी सर्विसेज कैन बी मूव टू डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप्स। और हमने बात कर ली कि एप्लीकेशन कैन यूटिलाइज मल्टीपल रिसोर्स रीजन्स इन अ रिसोर्स ग्रुप। सो रिसोर्स ग्रुप की अगर हमने बात कर ली, देर आर मल्टीपल वेज जहां से आप रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर टुडे हम एजर पोर्टल पे जाके एक सर्विस क्रिएट करेंगे अंडर या कह ले बैक इन द बैकग्राउंड। ये रिसोर्स कैसे क्रिएट कर रहे होंगे, एक एंटिटी है जो जिसका नाम है रिसोर्स मैनेजर, जो रिस्पॉन्सिबल है सब चीज़ों के इस तरह की मैनेजमेंट के। लेट्स से हम कहते हैं ना कि वी विजिट एनी इंस्टीट्यूट, तो एडमिन इज द फर्स्ट कह लें पर्सन और द एंटिटी यू मीट एंड यू प्रोवाइड एवरी इंफॉर्मेशन, और वो आपके लिए आपकी प्रोफाइल या स्टूडेंट का वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन करता है। तो सेम इज द केस, ये एक रिस्पॉन्सिबल, ये एज अ रिसोर्स मैनेजर इज द रिस्पॉन्सिबल एंटिटी हु क्रिएट्स एवरी सर्विस। अब इसको इनपुट्स मल्टीपल जगहों से आ सकती है। अगर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आए तो एजर पोर्टल की आप देख रहे हैं एक एरो जा रहा है। इवन यू कैन क्रिएट फ्रॉम द कमांड लाइन, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जैसे पावरशेल या एजर सीएलआई। विद इन द पोर्टल एक उन्होंने सीएलआई एम्बेडेड दी हुई है, वहां से भी आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग उधर से कर रहे होते हैं। जो न्यू है या फर्स्ट टाइम अगर आप कोई सर्विस क्रिएट कर रहे हो तो आप थोड़ा इजी अप्रोच के लिए पोर्टल पर जाते हो। अदर देन दैट अगर आपने प्रोग्रामेटिकली कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो उस केस के लिए भी आपको एसडीकेज मिल जाएंगी, उसके आप उन एपीआईज को यूज करते हुए भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। सो वो एपीआईज किन को रेफर कर रही होंगी, वो ARM एजर रिसोर्स मैनेजर को ही कर रही होंगी रीच आउट। सो अभी हम देखते हैं एजर रिसोर्स मैनेजर अभी फिजिकली हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन व्हेन एवर आप यूज कर रहे होगे पावरशेल या कोई, तो आप कोई लाइब्रेरी विद द नेम ARM या सॉर्ट ऑफ सिमिलर नेम आप यूज कर रहे होगे। फॉर टुडे सेशन जो हम पोर्टल से हम करेंगे तो उसके अंदर तो हमें ARM नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो बैकएंड के ऊपर पोर्टल में जो हम अपने अपडेट या कोई क्रिएट की बटन पे क्लिक करेंगे तो बैकएंड के ऊपर वही सर्विसेज यूज हो रही हैं, उन्हीं कोई कॉल्स आ रही हैं। सब्सक्रिप्शंस, आपने कुछ भी एजर के ऊपर क्रिएट करना है और तो आपको एक अदद सब्सक्रिप्शन चाहिए। और जब हम बात कर ही रहे हैं सब्सक्रिप्शन की, तो इफ़ यू वांट टू फॉलो अलोंग, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, तो कहाँ से आप शुरू करेंगे? सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, सो बेस्ट ये है कि आप एजर फॉर स्टूडेंट्स सर्च करें, तो यू विल लैंड अप ऑन दिस लिंक, जहाँ के ऊपर आप अपनी यूनिवर्सिटी का ईमेल आईडी देके विदाउट प्रोवाइडिंग अ क्रेडिट कार्ड आप साइन अप कर सकते हैं। आपको $100 क्रेडिट मिलेगा। अदर देन दैट आपको कुछ सर्विसेज मिलेंगी फॉर फ्री। लेट्स से आपने अपना FIP होस्ट करना है एजर के ऊपर विदाउट स्पेंडिंग अ डाइम, तो यू कैन इजीली डू दैट। आपको उस क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हो। अदर देन दैट अभी हम एक वेब ऐप क्रिएट करेंगे तो उधर फ्री वेब ऐप्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। सो 10 वेब ऐप्स आप फ्री क्रिएट कर सकते हैं। आप उस पर अपनी वेब ऐप क्रिएट करें, आपको डेटाबेस इतनी ये स्पेस मिल रही है, आप इसको यूटिलाइज करें, तो फॉर अ ईयर यू कैन इजीली होस्ट योर वेबसाइट्स। ठीक है, सो बहुत सारी सर्विसेज हैं, यू कैन एक्सप्लोर ऑन योरसेल्फ। इसके अलावा अगर इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट and if you are a professional and you want to try your solution on Azure,
तो you can easily do that, but credit card is required for the sign up, or a debit card, any Visa or Mastercard is required. Simply आपने Azure trial search करना है and you will end up on this link, and on that you can start for free. Credit card जो use होगा उससे कोई transaction नहीं होगी, आपको सिर्फ एक वो पेनी टेस्ट प्रोग्राम है, यानी $1 माइट भी चार्ज हो, जिससे वो सिर्फ वेरिफिकेशन हो जाए कि आइदर दिस क्रेडिट कार्ड इज ओरिजिनल और नॉट, इट्स नॉट अ फेक। तो वो होने के बाद से आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, एंड वंस आपका ये $200 अचीव हो जाता है, सो यू वोंट बी चार्ज फॉर द न्यू for any new services. I believe in the background I'm hearing azan, so let's stop for like 2-3 minutes and continue again. Okay जी, so coming back to हम बात कर रहे थे how you can create your free account. So आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप either स्टूडेंट है तो उसे क्रिएट कर सकते हैं, if you are not a student, you are a professional, so you can create by searching Azure trial, and after this आपने क्रेडिट कार्ड लगाना है। क्रेडिट कार्ड की जब 200 आपका सब कुछ वेरिफिकेशन हो जाती है, आपको $200 जो है वो 30 डेज के लिए मिलेगा। वंस आपको ये 30 डेज आपके आइदर 30 डेज पूरे हो जाते हैं, या $200 जो हैं वो आपके हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा टू कन्वर्ट योर अकाउंट इनटू पे एज यू गो। कीप इन माइंड के लाइक अदर क्लाउड्स, आपको कोई एक्स्ट्रा आपका क्रेडिट कार्ड नहीं यूज होगा फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर सर्विसेज। जैसे ही लिमिट रीच होगी, आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो डिसेबल हो जाएगी, आपको इनेबल करना पड़ेगा। इट इज़ गुड मॉडल, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ट्रायल के केस के अंदर कोई वर्चुअल मशीन बना के छोड़ जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो ट्रायल के लिए थी और हमने उसको डिलीट करना भूल गए, तो क्या होता है कि आपकी वो चलती रहती है और उसकी कॉस्ट आपको पड़ती रहती है। लास्ट टाइम हमने बात की थी क्लाउड इज पे एज यू गो, सो एवरीथिंग यू क्रिएट विल कॉस्ट यू समथिंग, सो उसको बड़े इफेक्टिवली आपने यूज करना है। अगर ट्रायल है तो राइट आफ्टर योर डेमो और पीओसी उसको डिलीट कर लें। ओके, सो हमने सब्सक्रिप्शन की बात की। हम एज़्योर पोर्टल पे जाते हैं, कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं और फिर हम वापस आते हैं। सो पोर्टल का डेमो करवा लेते हैं। सबसे पहले एज पर द स्लाइड डेक, वी हैव टू विजिट एज़्योर पोर्टल एंड लुक फॉर द ऑल सर्विसेज। सो यू कैन नेविगेट टू portal.azure.com। सबसे पहले जब कोई भी लॉगिन हो सकता है, irrespective ऑफ द सब्सक्रिप्शन यू हैव। सो आपने लॉगिन करके इन चीज़ों को देख सकते हो, लेकिन जैसे ही आप कोई सर्विस न्यू क्रिएट करने लगोगे तो इट विल आस्क यू फॉर सब्सक्रिप्शन। सो सर्च फॉर सब्सक्रिप्शन फर्स्ट। अगर आपने ट्रायल साइन अप कर लिया है तो सब्सक्रिप्शन में आके सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास कितनी सब्सक्रिप्शन चल रही हैं। सो दे आर मल्टीपल इन माय पोर्टल। सो मेरे अकाउंट में काफ़ी सारी हैं, एंड आई मोस्टली यूटिलाइज देम फॉर पीओसी पर्पसेस। कुछ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिली हुई हैं। सो यहाँ के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपकी एक्टिव और इनएक्टिव सब्सक्रिप्शन जो है वो कौन कौन सी हैं। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन वन पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन, तो वो आपको बताएगा कि उसकी बिलिंग पीरियड क्या है, यानी बिलिंग साइकिल क्या है। मंथली आपको बिल आएगा,
नॉट एवरी डे। सो आपने कोई भी सर्विस यूज़ किया तो आपको पर आवर अगर आपको रेट आ रहा है उसका, तो या आपको पर डे रेट आ रहा है तो आपको डेली नहीं, मंथली इनवॉइस माइक्रोसॉफ्ट जनरेट करेगा, माइक्रोसॉफ्ट एजर, और आपको वो पे करनी होगी। सो आपको यहाँ के ऊपर आपका सब्सक्रिप्शन का नेम, ये सब्सक्रिप्शन आईडी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग प्रोग्रामेटिकली, सो या एक्सेसिंग प्रोग्रामेटिकली। सो उसके अंदर ये है कि आपके पास ये सारी चीज़ों के बाद से द इम्पॉर्टेंट थिंग you have to manage or keep an eye on is the cost. So cost analysis के अंदर आके आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि मेरी प्रोजेक्शन क्या जा रही है। क्योंकि जैसे हमने बात की ट्रायल की, तो ट्रायल के अंदर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या सर्विसेज मिल रही थी, $100 पूरे 12 महीनों के लिए मिल रहे थे। तो आपने देखना कि मेरे 12 महीने जो है, लेट मी नेविगेट बैक टू दिस। सो प्रोजेक्शन क्या आ रही है, फॉरकास्ट क्या है, सो इस हिसाब से कि ये ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, तो उससे पता लग जाएगा आपको कि ये सर्विसेज हैं, ये कंज्यूम कर रही हैं मेरा क्रेडिट, तो मुझे इनको इफेक्टिवली मैनेज करना है। प्लस यू कैन सेट अप अलर्ट्स। सो लेट्स से मेरा $50 अगर रीच हो जाए तो मुझे एक अलर्ट आ जाए, बिकॉज जब आपको एक सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, डिप्लॉय करना चाहते हैं एजर के ऊपर, तो आपको एक टेंटेटिव कॉस्ट को माइंड में रखना है कि इतनी आएगी। सो इससे ऊपर है तो सस्पिशियस है, मुझे कुछ एक्शन लेना है। सो इट्स यू कैन से वाइज ऑफ यू टू बिल्ड टू थिंग्स व्हेन यू आर मैनेजिंग ए सब्सक्रिप्शन, एक तो कॉस्ट अलर्ट्स और दूसरा बजट। आप अपना स्पेंडिंग लिमिट जो है पर रिसोर्स ग्रुप आप बता सकते हैं कि मेरा ये रिसोर्स ग्रुप के ऊपर इतने डॉलर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी ऑल सर्विसेज में आते हैं तो ओके, सो दीज आर जनरल कैटेगरीज। ठीक है, सो बहुत सारी सर्विसेज है, और ये मैं बात कर रहा था कि यूजुअली आपके पास प्रीव्यू के अंदर आती हैं, एंड आफ्टर सम टाइम सो फीडबैक एंड सो ऑन इम्प्रूवमेंट, वो चीज़ जो है वो आपके पास कह लें कि पब्लिक व्यू के अंदर अवेलेबल होती है, इसे प्रोडक्शन ग्रेड हो जाती है। सो जनरल कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे अगर आप देखें तो ये जनरल के अंदर हमने भी सब्सक्रिप्शन को देखा, इसके अलावा भी रिसोर्स ग्रुप की हम बात कर रहे थे, मार्केट प्लेस की हम बात करेंगे, अभी काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी बिल्ट इन हैं, थर्ड पार्टी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। कंप्यूट के अंदर बहुत सारी हैं चीज़ें, नेटवर्किंग है, देयर आर 16 इन स्टोरेज, वेब के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मोबाइल के लिए कंटेनर्स एंड सो ऑन। सो ऑल में आपके पास बहुत कुछ है, प्लस यू कैन सेट देम फेवरेट। लेट्स से अगर आप इसको कोई भी ऐसी सर्विस है जो कि आपके कॉमनली है, ये इधर सारी कैटेगरीज भी आ रही हैं, लेट्स से आई फ्रीक्वेंटली यूज सब्सक्रिप्शन, तो मैं सब्सक्रिप्शन पे जाके उसको फेवरेट भी कर सकता हूँ। लेट मी गेट बैक टू दैट। सी, सो अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सॉरी, लेट मी ट्राई इट अगेन। सो इधर आपके पास ऑप्शन आ रही होगी ये स्टार की, तो अगर आप इसको स्टार कर देंगे तो आपके पास ये जो आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके ये जो मेन्यू आ रहा है डैशबोर्ड का, इधर आप इसको पिन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, जो आपकी फ्रीक्वेंट यूज में सर्विसेज हैं आप उनको पिन कर सकते हैं। अदर अदर देन दैट आप सर्च में भी आके उनको इधर से देख सकते हैं कि ये आपके पास सर्विसेज हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू विजिट या यू डोंट वांट टू नेविगेट टू दिस ऑल सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्टल में है, तो पोर्टल के कुछ डेमो, जब आप फर्स्ट टाइम पोर्टल में आएंगे तो आपको एक क्विक वॉक थ्रू मिलेगा, सो वो उसको तसल्ली से देखें, जिसमें आपको चीज़ें बता रहा होगा जो कि मैं भी बता रहा हूँ कि ऑल सर्विसेज क्या है। प्लस हमने बात की थी अभी कि इंटीग्रेटेड हमारे पास CLI होती है, जैसे कि ये है। सो इट आस्क फॉर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इस सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको कहते हैं कि आप कब, ये जो मैंने सारा कुछ अभी क्रिएट अगर कोई करने लगा था कोई चीज़, तो आई कैन डू दैट फ्रॉम माई कमांड लाइन एज वेल। सो हम इसको देखेंगे इधर से बाद में, फॉर नाउ आई एम क्लोजिंग दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपके पास नोटिफिकेशन सेंटर है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहे होंगे। इन द सेटिंग्स यू कैन सेट मल्टीपल थिंग, अपीयरेंसेस आपको जो प्रेफर करते हैं, थीम्स आपको जिस तरह की पसंद है वो आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन सेट योर डिफ़ॉल्ट रीजन एंड डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। उसके अलावा यू कैन प्रोवाइड योर ओन इन्फॉर्मेशन। सो इधर यहाँ के ऊपर यूजली एडमिनिस्ट्रेटर की इन्फॉर्मेशन होती है, जहाँ के ऊपर रिपोर्ट्स और बिलिंग सपोर्ट इस किस्म की चीज़ें जारी होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ के ऊपर आपके पास
कोई चीज़ अगर आपने पूछनी है तो यू कैन आस्क फ्रॉम द कम्युनिटी, यू कैन जनरेट अ हेल्प एंड अ टिकट। इसके अलावा व्यूज सर्विसेज हेल्प बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू शुड नेविगेट टू let me try clicking it again. ओके, सो इट गिव्स यू कि इस टाइम कोई अगर सर्विसेज हेल्थ के इश्यूज अगर हैं माइक्रोसॉफ्ट फेस कर रहा है, सो वो इधर बता देगा। प्लान मेंटेनेंस के अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो भी आपको पता लग जाएगी। सो इस किस्म की ये 190 जो इनकी सर्विसेज आ रही हैं इधर, सो उसके अंदर अगर कुछ ऑप्शन है तो वो अगर कोई मसले मसाइल हैं तो वो आपको पता लग जाएंगे। यू कैन सेट अप हेल्थ अलर्ट्स एज वेल। सो अगर आपके लिए कोई रीजन कोई सर्विस इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी सर्विसेज हैं, 190 सर्विसेज आपको शो हो रही हैं। सो उसके अंदर से अगर आपने जो आप यूज़ कर रहे हो, लेट्स से वेब ऐप आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके ऊपर अगर वो डाउन हो रही हो कहीं इस आपके रीजन में, तो यू वांट टू गेट इट नोटिफाइड विदाउट इवन विजिटिंग दिस, तो आप अलर्ट सेटअप कर सकते हैं। बाकी फीडबैक वगैरह के लिए आपके ऑप्शन है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था पोर्टल का। हम सर्विसेज कुछ क्रिएट करेंगे, लेकिन उस सर्विसेज क्रिएट करने से पहले लेट मी क्विकली गेट बैक टू द स्लाइड्स। और बल्कि आई गिव यू लाइक 5 मिनट्स जहाँ के ऊपर आपके कोई अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू आस्क। Any questions so far? If you have, please raise your hand so you guys can be unmuted. Okay, so I believe कोई questions नहीं है। Okay, no questions so far. आई पहले तो ये कि किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, सबको समझ आ रही है, क्लियर है सबको? ओके, वन रिस्पॉन्स। बाकी भाई रिस्पॉन्स अगर आइदर यू कैन सेंड एन इमोजी जहां से पता लग जाए कि मुझे कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। आप लोगों को समझ आ रहा है? ओके, आई हैव वन हैंड रेस। अरसलान, आई हैव टू, थ्री। ये क्वेश्चंस के लिए है। आप प्लीज अरसलान इनका माइक अनम्यूट करके तो लेट देम स्पीक। जी, इनके माइक्स अनम्यूट है, अलाउड है आगे। Okay, see. So, guys, please ask if you have any questions. No question from Basharat. इसके अलावा किसी का हैंड रेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, लाइक जैसे भी आपने पहले अवेलेबिलिटी जोन्स की बात की थी, लाइक मैंने कोई एक ऐप डिप्लॉय की हुई है, देन उसकी इंस्टेंस एक जोन में चल रही है, तो लाइक ये तो चलें ठीक है, मुझे समझ आ रहा है कि इंस्टेंट वहाँ पे कुछ किसी भी तरह से वो सर्वर डाउन होता है, वो दूसरा किसी और जगह भी इंस्टेंस पड़ी है वो वहाँ से रन कर देगा, बट इंस्टेंस के साथ मेरी एक डेटाबेस भी तो चल रही होगी ना, जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा होगा सारा। बिल्कुल। दूसरे जोन में वो सेम डेटाबेस कैसे आएगी? जबरदस्त, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ठीक है। सो इफ और कोई क्वेश्चन नहीं है, सो देखें, बात इनकी जबरदस्त थी और क्वेश्चन भी था ऐसे कि हर सर्विस अलग है। अभी हम उसके ऊपर जाके भी देखते हैं कि ईच एंड एवरी सर्विस जो है उसके ऊपर ना डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिलिंग मॉडल भी होता है और डिफरेंट मैनेजमेंट मॉडल भी है। तो आपने ये देखना है कि उस सर्विस का SLA क्या है और ये कैसे मैनेज हो रही है। तो देखें, हमारे पास डिफरेंट सर्विस है। अभी आप बात कर रहे थे वेब ऐप की और डेटाबेस, ये दो अलग सर्विस हैं। सो इसका डिजास्टर रिकवरी भी अलग तरीके से मैनेज होगा, इसका भी। जब हम ये क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो आपसे पूछेगा कि भाई हाउ डू यू वांट टू मैनेज द बैकअप्स, या इसकी
कह लें रेप्लिकेशन कैसे मैनेज करनी, पर्टिकुलरली रेप्लिकेशन वुड बी द राइट वर्ड, और उधर भी लेबल रेप्लिकेशन का होगा। तो आप सेट करोगे, आपको बताएगा लोकली रिडंडेंट, ग्लोबली रिडंडेंट और रीड एक्सेस ग्लोबली रिडंडेंट। जब आप लोकली रिडंडेंट करेंगे तो आपका जोन्स वाली चीज आ गई। ग्लोबल रिडंडेंट में क्या होगा कि जी लेट्स से मुझे 2 रीजन्स के अंदर मेरी एक कॉपी, एक वेस्ट यूएस के अंदर मेरी डेटाबेस चल रही होगी और एक मेरी उसमें, तो ये जो रेप्लिकेशन है कौन मैनेज कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है। तभी ये कि हम डेवलपर्स हैं और हम प्रेफर करते हैं पैस, प्लेटफॉर्म एंड सर्विस वाली सारी सर्विसेज, उसमें मोस्ट ऑफ द जो है ना इस तरह की मैनेजमेंट वो माइक्रोसॉफ्ट खुद कर रहा है। अगर आप वीएम बना रहे हैं वर्चुअल मशीन, तो वहां पे आपको खुद रेप्लिकेशन मैनेज करनी पड़ेगी। तो इधर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो जब हम एसक्यूएल की डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो मैं आपका ये दिखा दूंगा कि रेप्लिकेशन कैसे हो रही है। फिर एक जो मैंने तीसरी बात की थी, रीड एक्सेस RAG ग्लोबली रिडंडेंट, तो उसमें क्या होता है कि इवन आप जो सेकेंडरी अपनी जो है डेटाबेस उससे भी डाटा पुल कर सकते हो, आपको रीड एक्सेस भी मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप टीयर बढ़ाते जाते हो रेप्लिकेशन का, तो वैसे वैसे पैसे भी बढ़ते हैं। तो समटाइम्स आपको मुझे बैकअप वाले को जरूरत ही नहीं है, वो बैकअप तो वो खुद ही प्राइमरी सेकेंडरी बन जाएगा, प्राइमरी नोड से सेकेंडरी नोड बन जाएगी, सेकेंडरी से प्राइमरी, तो ये माइक्रोसॉफ्ट खुद ही मैनेज करता रहेगा। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके सर, थैंक यू। नो क्वेश्चन सो फार। सो अगर इसके अलावा नहीं है तो आई कैन गेट बैक टू माई स्लाइड्स और फिर हम पोर्टल के ऊपर दोबारा आएंगे। मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन इनका सर्विसेज का जो हमने क्रिएट करनी है उनका करवा के, तो फिर आई गेट बैक टू पोर्टल और हम कुछ चीज़ें क्रिएट करके देखते हैं। ओके, लाइक Okay. उस्मान की आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, लाइक जस्ट अटेंडेंस के साथ ही एक डिस्कशन थी कि ड्यूरिंग द सेशन लाइक कोई भी आपको क्वेश्चन है, तो जैसे अभी उस्मान ने भाई ने भी बताया कि आपने ना हैंड रेज की ऑप्शन साथ साथ करनी है ताकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस कर सके। अगर आपको समझ आ रही है ना, तो इसके अंदर एक और इमोजी है, ठीक है, आपने लाइक इसके अंदर बताना है कि आप लोगों को साथ साथ समझ आ रही है। इमोजीज में कौन कौन सी इमोजीज है हमारे पास वैसे? हैंड रेज ये या शायद और भी है, लाइक आपने साथ साथ ना एक्नॉलेजमेंट देनी है कि आपको समझ आती जा रही है चीज़ों की। We अभी have applause, laugh and love, heart. हाँ, यस, तो आपने लाइक कोई भी हार्ट करते जाएं कि अगर आपको समझ आ रही तक पता हो कि आप अटेंटिवली ज्वाइन करें, ठीक है। तो अभी 56 है, तो सबको अगर समझ आई तो 56 हार्ट्स यहाँ पे आने चाहिए मेरे पास। पहले तो हार्ट्स आए ना सबकी तरफ से, 56 हार्ट्स। अच्छा, Receive 2. 56, Okay. ठीक है, चले मतलब अभी जिन ठीक है। I have multiple hand raise. Maz ने hand raise किया हुआ है। Maz, if you want to ask any question. माज के पास भी है, उसके अलावा अली भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, तो इनका माइक अनम्यूट कर दें अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने हैं तो। ठीक है, इनको मैं अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, साथ साथ जो भी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आते जा रहे हैं, लाइक आप एक एक्नॉलेजमेंट देते जाएं थ्रू इमोजीज के, आपको जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आते जा रहे हैं। ठीक है उस्मान भाई, आप कंटिन्यू कर लें तब तक फिर आप। ओके, सो क्विकली स्लाइड पे आके फिर दोबारा से हम पोर्टल पे आएंगे। लेट मी स्विच टू प्रेजेंटर मोड। हमने इंट्रोडक्शन करते हैं, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ जिसके अंदर बस एक बेसिक ज्योग्राफी की क्विक रीकैप। हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी आप कहीं भी सेलेक्ट नहीं कर रहे होंगे, आप रीजन सेलेक्ट कर रहे होंगे। अभी हमको एक सर्विस क्रिएट करके देखते हैं, तो उसमें से वन ऑफ द 60+ रीजन में से कोई हम एक सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें लगता है कि हमारे नियरेस्ट हैं। वो भी उसका भी मैं आपको एक वर्क अराउंड बताऊंगा कि लेट्स से आप पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में तो आपको कोई रीजन ही नजर आ रहा है, सो यू वांट टू फाइंड आउट द क्लोजेस्ट डेटा सेंटर, तो वो स्पीड टेस्ट आप कर सकते हैं, सो आप वो यूज कर लें। उसके अलावा रीजनल पेयर्स की बात की थी, दिस इज फॉर द बैकअप एंड मेंटेनेंस पार्ट। ये ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन होती है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, लेकिन ये इन्होंने प्री डिफाइंड पेयर्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा आप खुद से भी अपने बैकअप रीजन्स डिफाइन कर सकते हैं। वंस व्हेन यू आर इन IaaS, ये फॉर PaaS के केस में बैकग्राउंड के ऊपर ये सारी
मैनेज हो रही होती हैं। अवेलेबिलिटी ऑप्शंस की बात की थी उन्होंने, वीएम के केस के अंदर अवेलेबिलिटी ये थी कि आपने अगर आप प्रीमियम स्टोरेज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रहा है उसकी। ये जब हम कोई सर्विस क्रिएट कर रहे होंगे ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन भी आ रही होगी उसके कि प्रीमियम करेंगे तो उसका SLA क्या है, अगर आप HDD के ऊपर जाएंगे तो उसका SLA क्या है। सो SSD और इसके अंदर भी फ़र्क आपको बता रहे होंगे। सो उसके अलावा आपके पास ये जो स्केलिंग की ऑप्शन है और ये जो बैकअप की ऑप्शन है उसके लिए आपके पास अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, और फिर मल्टी रीजन्स भी हैं आपके पास के वंस वन रीजन इज़ डाउन फॉर एनी नेचुरल डिजास्टर या कुछ आउटरीच की वजह से, तो दूसरा आपका रीजन जो है वो सेकेंडरी जो है वो एक्टिव हो जाता है। अवेलेबिलिटी जोन्स की हम बात कर दी, कुछ रिसोर्सेज की बात की थी, रिसोर्स ग्रुप्स की बात की थी विच इज़ अ लॉजिकल कंटेनर for managing your resources, or resource group manager is a service, or you can say an entity which manages all your resources when you try to create, update or delete them. Apart from that, सब्सक्रिप्शन की बात की थी कि क्योंकि सारी सर्विसेज जो हैं वो किसी सब्सक्रिप्शन की बेस के ऊपर आपको मिलती हैं, सो यू हैव टू हैव सम क्रेडिट और सब्सक्रिप्शन इन प्लेस टू क्रिएट एनी सर्विसेज इन माइक्रोसॉफ्ट एजर पोर्टल। पोर्टल का हमने थोड़ा सा डेमो किया, कुछ चीज़ें उसकी देखी इधर। हम मैनेजमेंट ग्रुप्स की बात करते हैं, हम इधर आ जाते हैं पहले क्विकली कोर एजर वर्कलोड्स के ऊपर। ये कुछ वर्कलोड्स हैं, जैसे हम कैटेगरीज अभी हमने देखी थी ऑल सर्विसेज के अंदर, कंप्यूट में हमें नजर आ रही थी, फिर स्टोरेज के अंदर थी, फिर मोबाइल, ये सारी कैटेगरीज बनाई हुई थी इन्होंने। सो जैसे कि हम ये है हमारे पास कोर एजर सर्विस की बात करें तो जनरल है, ये कंप्यूट है, ये नेटवर्किंग की सर्विसेज हैं, ये स्टोरेज के हैं। सो ये इधर आपके पास कैटेगरीज नजर आ रही हैं। सो इनके अंदर से हम कुछ को क्विकली डिस्कस करते हैं। compute services are basically for those services which provides you processing power. So let's say आपने अपनी एक कुछ भी, अगर आपको कोई अपना फंक्शन चलाना है, आपने अपनी कोई वेब ऐप होस्ट करनी है, तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। सो आप आइदर वर्चुअल मशीन में इसको होस्ट कर लें, वेब ऐप के अंदर चले जाएं, आप कंटेनर के अंदर उसको पैकेज करके रख दें, ऑर्केस्ट्रेट करना चाह रहे हैं उसकी स्केलिंग को तो कर सकते हैं, और समटाइम्स आपके पास कोई एक डेस्कटॉप पे ऐप्स हैं जो कि यू वांट टू ग्लोबली एक्सेस देम, तो यू हैव विंडोज वर्चुअल डेस्कटॉप्स अवेलेबल। So some of the services जैसे ये वाली is out of scope for in our agenda, but some of them we will touch and create our services. So virtual machine की कुछ बात कर रहे थे थोड़ा सा और डिटेल के अंदर कि virtual machine फॉल करती है IaaS में, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के अंदर। सो कीप इन माइंड, हमने लास्ट टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉर्ट ऑफ एक ग्राफ देखा था जहाँ पे था कि व्हाट इज मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड व्हाट इज मैनेज बाय यू। सो IaaS के केस के अंदर आपको मेजरली आपको खुद मैनेज करना है उसकी वर्चुअल मशीन जो आपने बनाई है। अगर आपने OS इंस्टॉल किया तो OS की आपने जो भी आपने यूज सेलेक्ट किया था उसकी अपडेट्स आपने मैनेज करनी है, उसकी पैचिंग आपने, उसकी सिक्योरिटी सब कुछ आपने मैनेज करनी है। मेमोरी उसकी अगर आपने जो भी है वो सेलेक्ट करते हुए आप बताओगे, इसका फायदा क्या होता है कि इट गिव्स यू अ कंप्लीट कंट्रोल इधर बहुत ज़्यादा है आपके पास। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरे पास अगर 10 वेब ऐप्स हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव मेरे पास सोल्यूशन क्या होगा कि मैं एक वर्चुअल मशीन बना के वो 10 वेब ऐप्स इधर होस्ट कर लूँ, रादर देन मैं उनको वेब ये जो दूसरी सर्विस है हमारी ऐप सर्विस उसमें बनाने की बजाय मैं इसको वर्चुअल मशीन में ले रहा हूँ। तो ये वाली जो है ये स्ट्रेटेजी वगैरह ये हम कब डिस्कस करेंगे, जब हम एक दफ़ा प्राइसिंग कैलकुलेटर को डिस्कस कर लेंगे, तब ये प्राइसिंग के ऊपर आपका सोल्यूशन वेरी करता है और आपका देखता है कि रिसोर्स के ऊपर कि अगर आप वर्चुअल मशीन सिर्फ प्राइसिंग के ऊपर करते हुए कि सस्ती पड़ रही है आप चले जाओ, लेकिन आपके पास उतना स्किल सेट ही नहीं है, आप एक डेवलपर हो, तो आप कैसे वर्चुअल मशीन मैनेज करोगे उसकी अपडेट्स। सो आपने वो भी देखना है कि व्हाट रिसोर्सेज यू हैव इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द जो कह लें कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो हमने सोल्यूशन को अपना इजी और क्विकली अचीवेबल बनाना होता है, तो उसके लिए हम इन वन ऑफ द कंप्यूटर सर्विसेज अपनी कोई चूज कर रहे होते हैं। हम वर्चुअल मशीन भी बनाएंगे, लेट मी जस्ट क्विकली वॉक थ्रू इन सर्विसेज का डेमो। ये इनका जो डिस्क्रिप्शन है उसके बाद से हम पोर्टल में आके एक दफ़ा क्रिएट करते हैं। अब एजर वेब एप्स की अगर हम बात करें, एजर ऐप सर्विस की, सो ये है हमारे डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप .NET के रिसोर्स हैं, आप .NET की ऐप्स बनाते हैं, आप PHP की बनाते हैं, किसी भी तरह की ऐप बनाते हैं, तो आप इजीली होस्ट कर सकते हैं इसको एजर ऐप सर्विस के ऊपर। एक जो एक माइंडसेट बना होता है कि इट्स माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, तो इधर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ें चल रही होंगी, नहीं, इधर आपके पास ओपन सोर्स की चीज़ें भी इजीली ही चल रही होंगी। इसका फ़ायदा क्या है ऐप सर्विस का
चूंकि आप डेवलपर हैं तो आपको सिर्फ फोकस करना होता है अपने कोड के ऊपर, यानी अपनी एप्लीकेशन और उसके जो डेटाबेस है उसकी डाटा के ऊपर, या जो भी उसमें डाटा चल रहा है उसमें। अदर देन दैट आपको ना नेटवर्किंग की देखनी है, ना मुझे देखना है कि अपडेट्स क्या आ रही है, ना मुझे उसके अंदर एसडीके इंस्टॉल करना है। सब कुछ जो है वो मैनेज हो रहा होता है ऑलरेडी। यू जस्ट हैव टू ब्रिंग योर डाटा इन एप्लीकेशन। सो इसमें आप इजीली बना लेते हो चीज़ें, इसमें स्केलिंग बहुत इजी है, इसके अंदर रेप्लिकेशन बहुत इजी है आपकी। सो हम जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके रेलिवेंट हमें क्यों इसको कह रहा हूँ। ऐप सर्विस क्रिएट करते जाके क्विकली इनका डेमो और कंटेनर सर्विस का कर लें। कंटेनराइजेशन के ऊपर आई वुड, इफ़ यू आर न्यू, पहले तो ये कि आपको कंपैरिजन करना है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक जस्ट जनरल है, अभी हम कीप इन माइंड कि ये फंडामेंटल्स के हमने फर्स्ट 6 लेक्चर जो है हमारे फंडामेंटल्स के हैं। तो अगर आपको इन डेप्थ नहीं भी अगर अभी किसी चीज़ की समझ आ रही, तो इट इज़ ओनली टू गिव यू अ गुड एग्जाम्पल कि इस सर्विस का पर्पस क्या है। और आपने जब हम डिटेल के अंदर देखेंगे उनकी टेक्निकल डिटेल्स, वो है हमारे आफ्टर सेक्स सेशन। सो कंटेनराइजेशन के ऊपर क्विकली बात कर लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्चुअल मशीन, जहाँ के ऊपर आपको फुल कंट्रोल था और आपने खुद अपनी मर्जी की एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हो, उसकी रैम वगैरह और सब कुछ, और नेटवर्क भी खुद ही सेटअप करते हो। सो कंटेनर्स के ऊपर आजकल क्यों डिस्कशन हो रही है और कंटेनराइजेशन के ऊपर, कंटेनराइज्ड ऐप के ऊपर क्यों डिस्कशन चल रही है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास क्या है कि इन्वायरमेंट बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। लेट्स से आपके पास, इफ़ यू आर न्यू टू डॉकर, सो प्लीज़ एक्सप्लोर, और अगर आप ये बिल्कुल पहली दफ़ा सुन रहे हैं नाम, तो एक्सप्लोर डॉकर्स। मैं जो ग्रुप बनाया है मैं उसमें लिंक्स भी कुछ शेयर कर दूंगा, सो उनको आप रीड आउट कर सकते हैं। सो कंटेनराइजेशन के अंदर क्या है कि यू डोंट हैव टू मैनेज द ओएस, प्लस आपकी जो इन्वायरमेंट है ना, जो जो होता है ना, वर्क्स ऑन माय मशीन, डेवलपर्स का होता है जी मैंने डिप्लॉय किया तो नहीं सही चल रहा, ये वाली चीज़ एलिमिनेट हो जाती है। वही सेम कंटेनर जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हो, यानी वो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन चल रही है ऑन प्रेमिसेस, वही एज इट इज़ आपकी चली जाती है क्लाउड के ऊपर, और वो वैसे ही फंक्शन करना शुरू कर देती है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी स्केलिंग बहुत ईजी है। आपके पास इंफ्रा के अंदर, टिपिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो वर्चुअल मशीन के अंदर आपको खुद स्केलिंग और वो सब कुछ मैनेज करनी थी। इधर आपको एक ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस मिल जाती है जो कि लोड और ये सब कुछ मैनेज करी थी। जैसे ही आपके पास लेट्स से एक इंस्टेंस आपका चल रहा था जिसके ऊपर आपका सारी एप्लीकेशन थी, जैसे ही लोड बढ़ा वो उसको ऑटोमेटिकली स्केल कर देगा, एंड जैसे ही नहीं ज़रूरत होगी तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ आपको क्यूबरनेटिस सर्विस से मिल जाती है। इनकी डिटेल्स हम देखेंगे लेटर ऑन इन दिस सीरीज। विंडोज वर्चुअल डेस्कटॉप का मैंने बताया था कि आपके पास ये ऐप, आपकी डेस्कटॉप ऐप वर्चुअलाइजेशन है। इफ़ यू हैव अ डेस्कटॉप ऐप और यू वांट टू एक्सेस या प्रोवाइड एक्सेस इट ग्लोबली, तो आप इजीली कर सकते हैं इसके थ्रू। सो हम चलते हैं पोर्टल पे, और पोर्टल पे जाके सबसे पहले एक बेसिक सर्विस क्रिएट करते हैं। क्विकली रिकैप, हमारे पास सब्सक्रिप्शन होना या रिमाइंडर ज़रूरी है। सो आई हैव शेयर्ड give you 2 options जहां से आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। So let me try creating a new resource. क्रिएट अ रिसोर्स। हमारे पास ये कैटेगरीज आ रही हैं। हमने वो जो रीजन्स और सब कुछ समझा, वो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे हमें शो हो रहा होगा, और वो रिसोर्स ग्रुप की बात क्या है। सो फर्स्ट सर्विस आई एम गोइंग टू क्रिएट इज अ वेरी सिंपल सर्विस, वेब ऐप। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेब ऐप। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक स्टैंडर्ड आपको एक विज़ार्ड नज़र आएगा जो कि हर सर्विस के लिए सिमिलर है, जिसमें आपके पास ये कुछ कॉमन टैब्स होते हैं वो आएंगे। द फर्स्ट वन, द बेसिक वन वुड बी, जहाँ के ऊपर आप अपना सेटअप कर रहे हो सब्सक्रिप्शन। आप बता रहे हो कि मैंने किस सब्सक्रिप्शन में, इफ़ यू हैव मल्टीपल तो आपको ड्रॉप डाउन में आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर दिस लेट मी फर्स्ट सर्च कि मेरे पास सिस्टम किस में क्रेडिट है, और मैं okay, so I'll try using the MCT one. KG web app. I'll select one of my subscription, and it is a good approach to create a resource group. मैंने हमने बताया था resource group क्या है, a logical boundary or container in which all of your related services are managed. सो हमारा एक सेशन है, तो मैं इसके लिए एक रिसोर्स
ग्रुप बनाता हूँ, कुछ नेमिंग प्रैक्टिसेस भी साथ अलोंग द वे हम डिस्कस कर लेते हैं। सो यूजुअली ऐसा होता है कि क्लाइंट सबसे पहले हम किसके लिए बना रहे हैं। सो इन माय केस इट्स MSLA डैश द पर्पस या प्रोजेक्ट नेम, तो प्रोजेक्ट है जी हमारा डेमो, और आगे मैं टाइप दे देता हूँ RG। सो माय क्लाइंट, माय प्रोजेक्ट, या जिसके लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसको कह लें द ऑर्गेनाइजेशन, डेमो, और जो रिसोर्स टाइप। ये ज़रूरी नहीं है आप ये फॉलो करें, इट्स वन ऑफ माय प्रैक्टिसेस विच आई फॉलो। ये लेटर ऑन आपको रिपोर्टिंग के अंदर बहुत सिंपल हो जाता है। अदर देन दैट आप सिंपली इसको डेमो भी कर सकते थे, डेमो रिसोर्स करो या डेमो खाली। तो इट्स अप टू यू विच यू फॉलो। सो ओके जी, सो मेरा रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर मैं एक वेब ऐप बना रहा हूँ। सो मैं नाम दे देता हूँ इसको डेमो वेब ऐप। डेमो वेब ऐप इज नॉट अवेलेबल। ये क्यों अवेलेबल नहीं है, ये देखें। आपको जो भी आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, इट इज क्रिएटेड ऑन, यू कैन से आपके पब्लिक IP के ऊपर बन रही है .azure-websites.net के ऊपर। सो इट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। तो मैं वेब ऐप 1 ट्राई करता हूँ। ऑब्वियसली ये काफ़ी कॉमन नेम है तो नहीं अवेलेबल होगी। तो व्हाट इफ आई ट्राई MSLA वेब ऐप, ओके इट्स अवेलेबल। सो इसके ऊपर आप अपनी जो डोमेन आपने कहीं से परचेज की वो आप इजीली मैप भी कर सकते हैं। सो ये आपके लिए आप सॉर्ट ऑफ इंटरनल आप इसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये पब्लिक है, आपको मैं लिंक आफ्टर वंस इज क्रिएटेड आप उस पर भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन यूजली आपके पास .com .pkn वट उस पर वेबसाइट होती है तो वो इसके ऊपर मैप हो जाएगी। आप पब्लिश के लिए आप बता रहे हैं कि आप कोड के थ्रू करेंगे या कंटेनर के थ्रू। सो हम फॉर नाउ इट्स कोड, अभी हम कुछ डिप्लॉय नहीं करने लगे। वी आर ओनली ट्राइंग टू सी कि भाई ये जर्नी क्या होती है, कैसे सर्विसेज क्रिएट क्या होती हैं। सो स्टेप बाय स्टेप यहाँ के ऊपर हम कीप इन माइंड कि ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की हम बात कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द पास सर्विस। तो प्लेटफॉर्म के अंदर आपको शुरू में सब कुछ बता देना है और ये सारा कुछ खुद ही मैनेज कर रहा होगा। तो यहाँ पे रन टाइम वो बता रहे अवेलेबल है, नॉट जस्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टैक, आपके पास और डिफरेंट स्टैक की भी हैं। और समटाइम्स अगर आपके पास इधर से लेटेस्ट, इधर हमेशा लेटेस्ट और जो स्टैंडर्ड है वो अवेलेबल होंगे रन टाइम। अगर आपके पास नहीं है तो आप इजीली डॉकर, कोई लेगेसी चीज़ चला रहे हो तो आप कंटेनर यानी उसको पैकेज करके आप इधर डिप्लॉय कर सकते हो। इधर आपका डॉकर हब के ऊपर आपका पड़ा हुआ इमेज आप उधर से कर लो या इनके कंटेनर इंस्टेंस में रख के तो आप इसको इधर वेब ऐप इसके थ्रू डिप्लॉय कर सकते हो। फॉर नाउ आई एम गोइंग विद .NET 5। ऑप्शन पूछ रहा है आपके पास OS की लिनक्स पे जाना चाह रहे हो कि विंडोज़ के ऊपर। सो हम विंडोज़ के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे आगे हमारे पास रीजन्स। सो हमारे पास रीजन कौन सा रखना चाहिए हमें। I would go to Azure Speed Test. So there are 2 speed tests जहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि भाई मेरे नियरेस्ट कौन सा है। You can pick give it few minutes. अच्छा, दिस इज बाय द वे नॉट ऑफिशियल। वैसे तो ज्योग्राफी और मैप बनाने का ये है कि बेस्ड ऑन योर ज्योग्राफी आप देख सकते हैं उधर कि आपके क्लोजेस्ट कौन सा है। सो ऑब्वियसली वी हैव क्लोजेस्ट इंडिया एंड वी हैव UAE नॉर्थ। तो यू कैन फर्दर ड्रिल डाउन ऑन बेस्ड ऑफ द लेटेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, किस कम है। लेकिन आपको ये चीज़ भी देखनी है कि बेस्ड ऑन दैट इसकी प्राइसिंग भी चेंज हो रही होती है, हर रीजन की प्राइसिंग डिफरेंट है। सो आपको देखना है कि आपके कौन सा और ये प्राइसिंग कहाँ पे देख सकते हैं। एजर प्राइस कैलकुलेटर है जो कि हम विजिट करेंगे लेटर ऑन। अभी चूंकि एक पर्पस नहीं है हमारा कि इतना डीप डाइव जाएं सोल्यूशन की प्राइसिंग पे, तो हम उसको अभी स्किप कर रहे हैं। बट यू गेट द आइडिया कि रीजन आप सेलेक्ट कैसे कर सकते हो। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग फॉर साउथ ईस्ट एशिया या UAE नॉर्थ कर लेते हैं। ओके, there might be a chance a new data center, new region won't have your the service you are trying to create. So उसके लिए क्या है कि आप regions पे further जाके उनकी देख सकते हैं कौन सी कहाँ पे service available है। So let's assume everything is in place. हमने अपना region select कर लिया
उसके बाद से आप सर्विस प्लान, जहाँ पे प्राइसिंग की आप बात करते हैं कि आपको देखना है कि आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी. सो फॉर दिस वेब ऐप यू हैव टू क्रिएट एन ऐप सर्विस प्लान जिसके ऊपर आपकी ऐप सर्विस चल रही होगी. सो वो प्राइसिंग कहाँ के ऊपर है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं. सो बता रहे हैं विंडोज़ यूएई नॉर्थ, और ये फर्दर इसकी आपने डिटेल देखनी है तो यहाँ पे जाके देख सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ हम इधर से एक न्यू सर्विस प्लान क्रिएट करते हैं. सो अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं कि ये क्रिएशन के लिए आपको कॉमनली क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ के कितनी प्राइसिंग है और क्या है. मैं नेमिंग कन्वेंशन को स्टिल फॉलो करूँगा. सो मेरा MSLA में यूज़ कर रहा था, उसके बाद से मेरा जो प्रोजेक्ट नेम था वो डेमो था, और उसके साथ में एंड पे जो सर्विस मैं यूज़ करता हूँ उसके मैं एब्रीवेशंस यूज़ करता हूँ. जैसे ऐप सर्विस प्लान के लिए मैंने ASP यूज़ कर ली. अब इसकी प्राइसिंग पे आते हैं, SKU एंड साइज. सो आपके पास ऑप्शन है जी, आपने किस तरह का इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं. प्रोडक्शन ग्रेड कर रहे हैं, आइसोलेटेड जो कि बिल्कुल आपका प्रीमियम टियर पे आता है, और इंटरनली आप यानी प्राइवेट आप वेबसाइट को अपनी इवन रखना चाहते हैं, यानी वो सिर्फ विद इन द नेटवर्क एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए एक्सेसिबल हो, तो आप इस पे जा सकते हैं. डेव टेस्ट, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि यू कैन होस्ट 10 फ्री वेब एप्स, तो वो यहाँ पे है बिल्कुल. जैसे कि आप अगर F1 टियर पे जाएं तो यू कैन इजीली होस्ट योर वेबसाइट, लेकिन चीज़ें हैं स्पेक्स कम है, ये कह लें सर्विसेज कम है इसके अंदर. तो मेमोरी आपको मिल रही है 1 GB की, और सॉरी स्टोरेज आपको मिल रही है, और मेमोरी जो है वो मिल रही है आपको इसमें. इसी तरीके से शेयर्ड के अंदर आपको थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा हुई है, 9.49 पर मंथ पे गई है, लेकिन उसमें आपको कस्टम डोमेन की ऑप्शन मिल गई है. मतलब कि आपको जो भी आपकी वेबसाइट थी, जैसे हमारी MSLA डैश वेब ऐप थी .azure वेबसाइट्स के ऊपर, इसको आप अपनी कोई भी डोमेन के साथ मैप कर सकते हैं, एटलीस्ट आप D1 में हो. सो जैसे जैसे आप अपग्रेड करते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास ऑप्शन आती जाएंगी. यू कैन मैप कस्टम डोमेन प्लस SSL सेटअप कर सकते हैं. इसमें मैनुअल स्केलिंग है. जैसे ही मैं इसको प्रोडक्शन में लेके आता हूँ, S1 पे आता हूँ, तो और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं. सो आपके पास देखें, आपके पास ऑटो स्केलिंग आ गई है, और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी आप जो है, इसके अंदर आपके पास ऑटो स्केलिंग ऑप्शन है. आप सेट कर सकते हैं कि लेट्स से मेरी वेब ऐप के ऊपर मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जैसे अभी लेट्स से दराज 11/11 आ रहा है, तो उसमें क्या है कि उसमें पता है कि उनकी साइट के ऊपर या उनकी जो भी ऐप है उस पर लोड आना है, तो दे कैन सेट द ऑटो स्केलिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कैंपेन. जितनी देर तक उनकी कैंपेन चलनी है तो वो स्केल अप रहे, उसके बाद से इंस्टेंसेस कम हो जाए उसके. ठीक है. सो डेली बैकअप्स, ट्रैफिक मैनेजर, सो जैसे जैसे आप अपग्रेड करते जाते हो पैकेज को, वैसे वैसे सर्विसेज भी ऐड होती जाती हैं. अप्लाई एंड डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस पे आते हैं. फॉर नाउ इट्स डिसेबल्ड. ठीक है, हम डिप्लॉयमेंट को भी देखेंगे. इवन इन द कोर्स हम CI/CD सेटअप करेंगे एजोर डेवऑप्स के थ्रू. सो हम गिटहब के थ्रू भी डिप्लॉय करके देख लेंगे, FTP के थ्रू भी देख लेंगे जब हम वेब एप्स के पर्टिकुलरली सेक्शन में होंगे. वन ऑफ द सर्विसेज जो कि आपके पास अगर आपने मॉनिटरिंग करनी है, जो कि ऑब्वियसली करनी होती है आपने कि एप्लीकेशन की, कि ट्रैफिक कैसे आ रही, कितने रिस्पॉन्सेज मेरे पास ठीक जा रहे थे, कहाँ से आ रही थी. इट इज़ सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू यू कैन से गूगल एनालिटिक्स. मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सर्विसेज सिमिलर हैं. यूजली गूगल एनालिटिक्स की हम सर्विस लगाते हैं, उसमें देख लेते हैं कि हमारे पास एक यूज़र एक पेज के ऊपर कितनी देर रहा, कितने यूज़र, आपका एप्लीकेशन का मेजर एरिया कौन सा था, तो वो सारी चीज़ें भी आप इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं एप्लीकेशन इनसाइट्स के थ्रू. सो फॉर नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. जब हमें होगा तो हम कर लेंगे. हर चीज़ों को आप टैग देते हैं, जैसे कि आप अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या एटलीस्ट आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं ऐप, तो आप बता देंगे कि ये इसके लिए, सो दैट आपको फ्यूचर में उसकी बिलिंग ईजीली आप मैनेज कर सकें. सो इस तरह के आपके पास ये आपकी सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए है, ये टैग्स आप क्रिएट करते हैं. सो मैंने 2 टैग्स दे दिए अपनी याद दहानी के लिए कि यार ये मैंने किसके लिए बनाया था. ये ऑर्गेनाइजेशन थी MSLA, और ये मेरा इन्वायरमेंट जो है वो एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है. तो इन केस अगर इसके ऊपर इतनी वो क्रिटिकलिटी नहीं है, ये डिलीट भी हो जाता है, डिसेबल भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है. मेरी सारी इन चीज़ें प्लेस हैं. एक दफ़ा भी इधर वैलिडेशन चली थी कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, चल सकती हैं, और ये जो आपने सेलेक्ट की थी, एंड नाउ आफ्टर दैट वी कैन वैलिडेट एंड क्रिएट अ न्यू
So यहाँ के ऊपर आपको प्रोग्रेस पता लगती रहेगी, प्लस जैसे आपने नोटिफिकेशन सेंटर जो हमारा था वहाँ के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि ये आपको स्टैट्स पता लगते रहेंगे इधर कि चीज़ें कहाँ के ऊपर हैं इस टाइम। बाय द वे ये जब तक क्रिएट हो रही है हमारे पास दो अदर ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये देखें, एक है होम ऑप्शन, ये आपके व्यूज हैं, एक होम है और एक है डैशबोर्ड व्यू। फॉर डैशबोर्ड व्यू आप अपनी चीज़ें पिन अप कर सकते हैं। ओके, ये मेरा स्टैंडर्ड डैशबोर्ड था, वो मुझे ऑप्शन दे रहा था कि इसको पिन टू डैशबोर्ड। लेट मी ट्राई पिनिंग इनटू डैशबोर्ड। ठीक है, सो ये वेब ऐप पेन होगी। सो नेक्स्ट टाइम मुझे इधर विजिट करना है इसको तो मैं क्विकली इस पर क्लिक करके जा सकता हूँ। अदरवाइज मेरे पास इधर ऐप सर्विसेज भी आ रही हैं, इधर से भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन ये ज़रा क्विक अप्रोच होगी टू विजिट माई क्रिटिकल रिसोर्सेज। सो ये एक वेब ऐप क्रिएट हो चुकी है, मैं थोड़ा सा इसका डेमो करवा के, लेकिन बट बिफोर दैट ये क्रिएट हो गई है। मैं इसको ब्राउज पे क्लिक करूंगा तो यू गेट अ लैंडिंग पेज जहाँ के ऊपर आपके पास आ रहा है कि ए डेवलपर योर ऐप सर्विस इज क्रिएटेड, you can further understand this by navigating to quick start, और deployment center में जाके आप देखोगे there are multiple deployment options। so इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और इनके डीप डाइव भी जाएंगे। जस्ट एन ओवरव्यू क्विकली चीज़ों का कि ऑन द जब भी कोई चीज़ सर्विस क्रिएट होती है, अभी हम इंटरफेस एजर का वो समझना है कि नॉर्मली कैसे होता है। तो हमने देखा कि सर्विस कैसे क्रिएट होती है। जैसे कोई भी सर्विस क्रिएट होगी इन जनरल, तो आपके पास एक ये ओवरव्यू का एक पेज होगा जहाँ पे उसकी मेजर या एसेंशियल डिटेल्स जो होंगी वो इधर अवेलेबल होंगी। जैसे फॉर अ वेब ऐप आपका एक यूआरएल एसेंशियल होता है, उसके अलावा आपके पास सर्विस प्लान जो उसकी है वो एसेंशियल होगा, उसके अलावा आपके पास अगर एफटीपी के थ्रू आपने एक्सेस करना है तो वो चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू गेट अ टैब जहाँ के ऊपर आपके पास मल्टीपल सेक्शंस भी बनाए हुए हैं कि डिप्लॉयमेंट के लिए ये सारी चीज़ों को आपने टारगेट करना है। सेटिंग्स अगर आपने रखनी है तो आपने अलग से आपकी एक सर्विस क्रिएट हो गई है और वो थी .NET के ऊपर, ठीक है। लेटर ऑन आई वांट टू स्विच टू PHP तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास देखें ये आपके पास एप्लीकेशन की समटाइम्स कनेक्शन स्ट्रिंग्स होती हैं, जनरल सेटिंग है, ये हम बात कर रहे थे स्टैक की, इसको चेंज कर सकते हैं, इन इवन वर्जन भी सिलेक्ट चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है। सो आप लेटर ऑन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, यू कैन क्लिक सेव और ये सर्विसेज जो हैं वो ये जो आपके पास जो सेटिंग्स हैं वो सेव हो जाएंगी, ठीक है। वंस द सर्विस इज सेव तो आपको ऑप्शन देगा कि भाई आपने रीस्टार्ट करना है कि नहीं करना। क्योंकि रीस्टार्ट करेंगे तो उसके अगेन बैक एंड के ऊपर वो चीज़ें स्वैप कर देगा, जैसे हमारी .NET की उसने PHP पे कर दी तो इट वुड रिक्वायर अ रीस्टार्ट टू कॉन्फ़िगर दिस। इसके अलावा स्केलिंग ऑप्शन जो है सेटअप कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है वो आपके पैकेज जो आपने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर है। ऑटो स्केलिंग मेरे पास इनेबल्ड है बिकॉज आई सिलेक्टेड द S1 टियर। सो ये कुछ सर्विसेज आपके पास आ रही होंगी। अगर जनरल बात करें तो एक चीज़ जो आई वुड रिकमेंड, सेट अ लॉक सो दैट इट आपके पास अगर मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, मल्टीपल ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं तो वो इसको डिलीट ना कर सकें, तो लॉक सेटअप कर सकते हैं। बाकी लेटर ऑन हम वेब ऐप पे जब जाएंगे तो हम इन चीज़ों को और भी देखेंगे। तो अभी जनरल क्विक रिकैप, आपने कोई भी सर्विस क्रिएट करनी है तो यू विल नेविगेट टू क्रिएट अ रिसोर्स और वहाँ पे जाके विजिट आपके पास एक स्टैंडर्ड आएगा, मॉनिटरिंग का टैब होगा आपके पास, एट द एंड वो वैलिडेशन होगी और एक सर्विस क्रिएट हो जाएगी। यू कैन पिन दैट फॉर लेटर यूज। फॉर टुडेज सेशन में हमने जो कवर किया है वो हमने इन चीज़ों को देखा है कि ये कैसे क्रिएट होती है, पोर्टल इटसेल्फ क्या था। फिर इन द प्रीवियस सेशन वी डिस्कस कि मॉडल्स क्या होते हैं। सो ग्रेजुअली हम आप प्रोग्रेस करते जा रहे हैं और चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता डीप डाउन हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके लिए आई वुड रिकमेंड क्रिएट आफ्टर दिस सेशन, आपके पास एक वीक है, व्हेन नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट यू गाइस, सो आपके पास कोई आपने एक अपने ट्रायल अकाउंट सेटअप किया हो और कोई एक सर्विस जो है वो क्रिएट करके देखियो इनमें से, लेकिन मेक श्योर once you create the service it would cost you। so what I would do, click on this in the resource group, जैसे ही आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया है तो आप उसको डिलीट कर दें।
बिकॉज इट वुड कॉस्ट यू, इसकी मंथली चार्जेस जो आ रहे थे $48 थे इस पर्टिकुलर सर्विस के, तो मुझे नहीं चाहिए, मेरा डेमो कंप्लीट हो गया, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, सो पर्पस ये था कि इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर 2 सर्विसेज क्रिएट हुई थी, एक सर्विस प्लान था और इटसेल्फ एक वेब ऐप थी। तो इसको भी देखेंगे कि ये इसमें मल्टीपल हो सकती है कि नहीं हो सकती, लेकिन पर्टिकुलरली पर्पस ये था कि आपको रिसोर्स ग्रुप का पता लग जाए। रिसोर्स ग्रुप मैनेजर नहीं हमने देखा, वो बैकग्राउंड के ऊपर हमने रिक्वेस्ट जब डाली है डिलीट रिसोर्स ग्रुप की, तो रिसोर्स ग्रुप मैनेजर इज द एंटिटी और द पर्सन कहेंगे, एंटिटी कहेंगे, द सर्विस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दिस, तो उसमें वो डिलीट कर रहे हैं इसको। सो प्लीज डू ट्राई दिस एंड शेयर मी योर फीडबैक कि कितना मुश्किल लगा था, कितना इजी था आपके लिए कोई भी सर्विस क्रिएट करना, उसके नेमिंग कन्वेंशन की हमने बात की थी उसको, and then after that you should delete this so that आपके वो जो फ्री ट्रायल का क्रेडिट है वो खत्म जल्दी ना हो जाए। Any questions so far? So over to you guys. I see some hand raise. Shahab का hand raise है कि Shahab, if you Arsalan, please allow him to open up his जी mic. वो अनम्यूट कर सकते हैं, अलाउड। जी शाहब। Am I audible, sir? जी जी बिल्कुल। ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये हमने अभी एक सर्विस बना दी, अब इसके अंदर जो सोर्स कोड था वो माइक्रोसॉफ्ट का अपना ऑटो पे सोर्स कोड था, अगर कोई हमने अपना सोर्स कोड डालना हो वो कहाँ से होगा डिप्लॉयमेंट के लिए? जबरदस्त जबरदस्त। सो इसके अलावा कोई क्वेश्चन, आप इसी अगर ऐप से रिलेटेड है, मैं क्वेश्चन मुझे बता दें फिर मैं ये भी एड्रेस कर देता हूँ। नहीं बस यही। ओके, शहाब का क्वेश्चन था वो हम क्विकली एड्रेस कर लेते हैं। मैंने ऐप आई बिलीव डिलीट कर दिया, लेकिन मेरे पास एक और भी रनिंग होगी। इनका क्वेश्चन था कि ये जो सोर्स कोड है जो हमने पेज देखा था, ये तो माइक्रोसॉफ्ट का आ रहा है, ये एक सॉर्ट ऑफ एक टेम्पलेट, एक लैंडिंग पेज है, तो हम अपना कहाँ से सेटअप कर सकते हैं? तो मैं कोई भी एक ऐप सर्विस में जाता हूँ और इनको वो ऑप्शन दिखा देता हूँ। वैसे हमने डाउन द रोड जब हम ऐप सर्विस को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम ये बना रहे होंगे, ये चीज़ें खुद ही डिप्लॉय करके देखेंगे। सो लेट्स से मेरे पास एक ऐप सर्विस है और मुझे इसको डिप्लॉयमेंट करनी है, तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन सबसे पहले कि राइट पाथ क्या होगा। तो मैंने बताया था कोई भी ऐप जो होती है जब आप उस पर क्लिक करते हो तो यू लैंड अप ऑन दिस, ये ओवरव्यू पेज, और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास ये सारी ऑप्शंस, यहाँ वो उसमें कह लो फीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो हमने उसमें पर्टिकुलर कौन से फीचर में कैटेगरी पे डिप्लॉयमेंट पे आना है। ठीक है, सो डिप्लॉयमेंट में आके हम आएंगे डिप्लॉयमेंट सेंटर में, और डिप्लॉयमेंट सेंटर में आके आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी कि आप अपना सोर्स कोड इसके ऊपर कैसे डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, ये एफटीपी के थ्रू मैनेज है। ठीक है, सो इधर एफटीपी आ रहा है इन जनरल। लेट मी डिस्कनेक्ट दिस। वैसे तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। एक तो पब्लिशिंग जो टिपिकल है, मैं टिपिकल अगर होस्टिंग प्रोवाइडर की बात करूं तो वो आपको क्या देते हैं, एक एफटीपी एक्सेस देते हैं कि फाइलजिला के थ्रू डिप्लॉय कर लो, या पब्लिशिंग प्रोफाइल यूज करते हुए अपने विजुअल स्टूडियो जो भी आईडी है उसके थ्रू डिप्लॉय कर लो, तो वो तो है। अदर देन दैट आप अपनी इधर CI/CD सेटअप कर सकते हो। फॉर दैट आई हैव टू डिस्कनेक्ट दिस, और मैं अभी करके आपको डिप्लॉयमेंट ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये डिस्कनेक्ट की अगर मुझे ऑप्शन दें इधर। ये कोई एक पुरानी ऐप है, मैं किसी और ऐप में आ जाता हूँ। लेट्स से दिस, और ये भी मैं पब्लिशिंग प्रोफाइल के थ्रू मैनेज कर रहा हूँ। लेट मी नेविगेट टू वन ऑफ माय अदर सर्विसेज। इन अ मीनवाइल किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछता रहे जब तक मैं ओपन कर रहा हूँ कोई और सर्विस। ओके, सो ये मेरी डिप्लॉयमेंट सेंटर में मैनेज हो रही है Azure DevOps के थ्रू। तो वो इधर आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि ये लेटेस्ट बिल्ड जो है, ये देखें Azure पाइपलाइंस आ रही हैं। सो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सेंटर में जिस टाइम मैं फर्स्ट टाइम कोई भी सर्विस क्रिएट करूंगा तो मेरे पास इधर बहुत सारी ऑप्शंस आ रही होंगी जिसमें से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, और जब वो कन्फिगर मैं कर लूंगा तो उसकी जितने भी लास्ट डिप्लॉयड हैं
जो जो बिल्ड्स आई थी तो वो उनकी पता भी लग रहा होगा कि वो किस टाइम और किस वक्त डिप्लॉय हुई और कौन सा पैकेज था, तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंपलेस्ट व्यू क्या होगा आपके पास? वो सिंपलेस्ट व्यू ये होगा कि भाई अगर आपको ब्राउज़र में ही एडिटर मिल जाए और आप विदाउट एनी सोर्स को डायरेक्टली कोई फाइल क्रिएट करना चाहें तो वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो लेट्स से I believe I have one of the services जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ जिसमें मैंने कोई भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, तो hopefully that would do the job. I see load testing. Okay, ज़बरदस्त। So यहाँ पे आते हैं, डिप्लॉयमेंट सेंटर में आते हैं, और ये भी I believe it is managed by FTP. So हम इधर आके एडिटर देखते हैं, ऐप सर्विस एडिटर, ये नीचे डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट टूल्स। तो अगर हम डेवलपमेंट टूल में जाएं, ऐप सर्विस एडिटर में और क्लिक करें तो आपको इन ब्राउज़र आपको IDE मिल जाएगा। सो आप उसके थ्रू भी डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आप यहाँ के ऊपर चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली और एडिट भी कर सकते हैं। सो इवन इफ यू डोंट हैव एनीथिंग इन प्लेस, आप अपने कोड जो है अपना लेके आ सकते हैं इधर। सो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपको कोई बाउंड्री नहीं होगी। आप जो मीडियम आप गिटहब के थ्रू डिप्लॉय करना चाहते हैं, गिटहब अपना कनेक्ट करके डिप्लॉय कर सकते हैं। सो बहुत सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी। एनी अदर क्वेश्चंस?